Hello students, welcome to Divine English Coaching. Today we shall learn Standard 10 English First Flight, Chapter number 5, The 100 Races Part 1. As you can see the title on the screen, written by E.R. Bisser Easter. Before you read, let us read some introduction given in the textbook. How do we judge the people around us? By their money, wealth, and possessions? Or is there something of more enduring value to look for in a person? That means we meet many people every day. But how do we judge them? It depends on what attitude do we have in our mind, what is our point of view. Sometimes we judge them by their money. That means suppose the person does not have enough money, he is not rich. Then some persons may judge that he is poor man, he does not have good values. So it means that the person has judged that person by his money or wealth and possessions. What does he possess in his life? How much land does he have? How much bungalows he has? How much car? How much bikes he has? How many cars he has? How many bungalows? How many property he has? So that is one point of view. And here given another option, or is there something or more enduring value to look for in a person's? That means does there any other more enduring value exist that we can judge the person upon? Is there only money, wealth, and possession only that help us to decide the persons? What do you think? Okay, this story is a sensitive account of how a poor young girl is judged by her classmates. In this story, as we see the title of the lesson, The 100 Races Part 1. In this story, we see that this is a very sensitive account. This story is about a very poor young girl is judged by her classmate. How she is judged by her classmates. And the name of that poor girl is Vanda Petronsky. Vanda Petronsky is a young Polish girl. Polish girl means she belongs to Poland. She belongs to Poland. Suppose you are living in Gujarat, then you are called Gujaratis. Okay. Suppose you went to other states, or suppose you go to other countries, then people will call that you are Indian. Okay, and in the same country, then the people will tell that you are Gujarati. So this Vanda Petronsky belongs to Poland, so she is called Polish. And young, that means a very little one. She is a young Polish girl who goes to school with other American children in an American town. So she is Polish girl but lives in America, lives in American city and studies with American school, studies with American children. His classmates are American children. These other children see Vanda as different in many ways. So here the discrimination comes. You know what is the meaning of discrimination when we studied about Nelson Mandela. Okay. Here other children see वेंडा as different. वो लोग ऐसा मानते हैं कि वेंडा is not American. She is different from us in many ways, not only for one way that she belongs to Poland. कई तरीके से वो लोग ऐसा मानते हैं कि वेंडा पेट्रोन्स की अमेरिकन नहीं है, वो पॉलिश है, और किस तरह से उसे इंसल्ट करते हैं वो लोग, किस तरह से उसका फन बनाते हैं. That's why this story is a very sensitive account. It is called here. वो एक इनोसेंट माइंड क्या सोचती है वो सब आप इस स्टोरी में फील करेंगे. कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर? ओके, किस तरह से ट्रीट करते होंगे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. रीड द इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट बिलो, फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी. Which community do we have to find out here? About Polish community. ओके, पोलैंड के रहने वाले जो लोग हैं वो. और अबाउट द रिलेटेड टॉपिक फ्रॉम एन एनसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट. Okay, suppose you have time, then you can find on internet, otherwise it is very much well given and that is enough, I think. The Polish American community in the United States. Let us see something. ओके बेटा, आप लोगों को इंट्रोडक्शन समझ में आया? देखो एक फिर से समझा देता हूँ. द 100 रेसिस वन, उसमें एक
पॉलिश गर्ल है, पोलैंड की रहने वाली, उसका नेम है वेंडा पेट्रॉन्स्की। वो अमेरिका में रहती है, अमेरिकन स्कूल में पढ़ती है, उसके क्लासमेट्स हैं अमेरिकन चिल्ड्रन। तो अमेरिकन चिल्ड्रन उसको एक दूसरे तरीके से लेते हैं, उसकी फन बनाते हैं, उसका इंसल्ट करते हैं। ये सारी सेंसिटिव स्टोरी है सिर्फ इसीलिए बिकॉज सी डजंट बिलोंग टू अमेरिका। वो अमेरिका को बिलोंग नहीं करती, वो पोलैंड को बिलोंग करती है। और दूसरी भी बात है, वो पुअर है और एक ऐसे एरिया से आती है वहां सारे उसके जैसे लोग रहते हैं। तो ये पॉलिश लोग क्या थे उसका इंट्रोडक्शन यहाँ दिया गया है, देखिए। The Polish American community in the United States. The first Polish immigrants. Immigrants का मतलब क्या होता है? Immigrants का मतलब होता है दूसरे कंट्री से आने वाले लोग। कनाडा है, कनाडा में मोस्टली पीपल आर इमिग्रेंट्स। कनाडा के लोकल लोग बहुत कम है, वहाँ मोस्टली दूसरे कंट्री से। हमारे देश में भी आपने सुना होगा कई लोग आफ्टर 12th या कॉलेज गोज टू कनाडा फॉर अर्निंग मनी फॉर स्टडी। ओके, तो हम वहाँ इमिग्रेंट कहलाएंगे। ओके, तो इमिग्रेंट मतलब लिविंग इन अनदर कंट्री। द फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट, और पॉलिश का मतलब मैंने समझाया आपको बेटा। द फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608। सबसे पहली पॉलिश इमिग्रेंट कोई था तो वो अमेरिका में 1608 में आया। बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश इमिग्रेशन अकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। और बहुत सारे पॉलिश इमिग्रेंट्स अर्ली 20th सेंचुरी, जब 20th सेंचुरी बिगिन हुई तब आए। when more than 1 million Poles मतलब Polish migrated to United States। पोलैंड से शायद 1 मिलियन पोलैंड के लोग पोल्स यूनाइटेड स्टेट्स में माइग्रेट हुए। माइग्रेट मतलब आप जानते हो ट्रांसफर। जनरली माइग्रेशन वर्ड इज यूज्ड विथ वो एंटार्क्टिका में रहने वाले जो बर्ड्स जब कोल्ड सीजन्स होती है तो दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, वहां आपने सुना होगा। ओके, माइग्रेट मतलब टू गो टू अनदर कंट्री, ट्रांसफर प्लेस। द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। उस टाइम पॉलिश स्टेट नहीं था। ओके, पोलैंड का कोई स्टेट नहीं था, एग्जिस्ट नहीं करता था वो। एंड द इमिग्रेंट्स वेर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रेदर देन टू एथनिसिटी। एथनिसिटी का मतलब क्या होता है? कंट्री ऑफ ओरिजिन। ये जो एथनिसिटी लिखा है उसका मतलब होता है कंट्री ऑफ ओरिजिन। उस उनका ओरिजिनल कंट्री क्या है? सपोज हम गुजरात में रहते हैं, गुजराती है, और मगर हमारी कोई ओरिजिनिटी नहीं है, यहाँ कोई गुजरात ऐसा नाम नहीं है, मगर लोग जानते हैं यहाँ सारे गुजराती रहते हैं, तो हम कहीं जाएंगे तो लोग हमें गुजराती के नाम से पहचानेंगे। ओके, तो उस टाइम ये जो पॉलिश लोग थे उनका कोई स्टेट नहीं था, वो कहीं भी जाकर रहते थे। मगर ये जो इमिग्रेंट्स थे दूसरी जगह पर रहने वाले लोग, उनको लोग जानते थे उनकी ओरिजिनल कंट्री की वजह से, या उनका जो जो उसकी कास्ट थी पोलैंड के रहने वाले, इस तरह से वो उन्हें पहचानते थे। दे वेर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स। सपोज वो रसिया से आए हैं तो वो लोग उन्हें पहचानते हैं रशियन पोल्स। पोलैंड के तो थे ऑलरेडी, मगर उनका कोई परमानेंट स्टेट नहीं था। ओके, वो हमने देखा पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट। सो अगर वो जर्मन से आते तो वो कहलाते जर्मन पोल्स, एंड ऑस्ट्रेलिया से आते तो वो कहलाते ऑस्ट्रियन पोल्स। One of the most notable Polish American communities is in Chicago and its suburbs. सबसे नॉटवर्थी, बहुत सारे नंबर्स में रहने वाली पॉलिश कम्युनिटी है, और पॉलिश अमेरिकन इसलिए बोला है क्योंकि वो बहुत सालों से अमेरिका में रह रहे हैं। तो पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन शिकागो एंड इट्स सबसब। सो शिकागो इज समटाइम्स कॉल्ड द सेकंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड। ओके, ऑफ कोर्स शिकागो इज अ पार्ट ऑफ अमेरिका, मगर शिकागो को समटाइम्स सेकंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी कहा बोला गया है। क्यों? क्योंकि इतने सारे पॉल्स वहां रहते हैं। ओके, दूसरा प्लेस तो पहला कौन सा है? ऑफ कोर्स पोलैंड का होगा, नेक्स्ट ओनली टू वॉर्सो। सबसे पहला सिटी जहां पर सबसे ज्यादा पॉल्स रहते हैं वो वॉर्सो है। वॉर्सो क्या है? द कैपिटल ऑफ पोलैंड, पोलैंड का कैपिटल है। Polish Americans were sometimes discriminated against the United States.
जो पॉलिश अमेरिकन्स थे, पॉलिश अमेरिकन्स मतलब अमेरिका में रहने वाले पोलैंड के लोग, were sometimes discriminated मतलब to insult in the name of religion, to insult in the name of caste, to insult in the name of color of skin. नेल्सन मंडेला में हम ये बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। तो ये पोल्स को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट एज वेर द आयरिश, इटालियंस एंड ज्यूस। जिस तरह से आयरिश को, इटालियंस को और ज्यूस को ओके डिस्क्रिमिनेटेड किया जाता था, इसी तरह ये पॉलिश को भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। और ये हमारे लेसन की जो टाइटल कैरेक्टर है वेंडा पैट्रॉन्स की, वो पॉलिश थी, तो उसको भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस, यूनाइटेड स्टेट्स में 2000 में जो सेंसस हुए, सेंसस मीन्स जनगणना, हमारे कंट्री में भी ए लास्ट मई में सेंसस होने वाला था, जनगणना होने वाली थी, बट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस इट हैज बीन पोस्टपोन्ड। हर 10 साल में होती है सेंसस, जनगणना। तो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट 2000 सेंसस, 6,67,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home. इतने लोग पाए गए जो घर पर पॉलिश लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब इतने सारे पॉलिश अमेरिका में रहते थे 2000 में, which is about 1.4% of the people who speak languages other than English. जो इंग्लिश के अलावा जो लैंग्वेज बोलते हैं उसका 1.4% था, और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन, और यूएस पॉपुलेशन की 0.25% लोग पॉलिश थे। कब? 2000, okay, in the year of 2000. So that was introduction beta. Now let us begin to study about the textbook. Today, Monday, Vanda Patronsky was not in her seat. एक क्लासरूम का सीन है, क्लास में सारे बच्चे आके बैठ गए हैं। आज मंडे था, वेंडा पेट्रॉन्स्की अपनी सीट पर, जो वहां पर जो जहां बैठती थी बेंच पर, वहां नहीं है। बट nobody, not even Peggy and Madeline. These are Peggy and Madeline. उसका spelling और name वो भी आप अच्छी तरह याद रखना। These are also the chief characters of this story. ये तीन नाम याद रखना। ये वेंडा पैट्रॉन्स की वो पॉलिश गर्ल है, और ये जो उसकी क्लासमेट्स है पैगी और मैडलिन, पैगी और मैडलिन। But nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun. ये वेंडा पैट्रॉन्स्की की फन, वेंडा पैट्रॉन्स्की की इंसल्ट अगर किसी ने क्लास में स्टार्ट की थी तो वो ये लोग थे, पैगी और मैडलिन। क्या नहीं किया उन्होंने? द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन नोटिस्ड हर एब्सेंस। वेंडा पैट्रॉन्स्की आज क्लास में एब्सेंट क्यों है? किसी ने नोटिस नहीं किया। अदरवाइज हर रोज वो नोटिस करते थे, वेंडा पैट्रॉन्स की आ गई तो उसकी इंसल्ट करते, किस तरह से इंसल्ट करते, बहुत बुरी तरह से उसको इंसल्ट करके डिस्क्रिमिनेट करते। मगर आज वो नहीं थी तो किसी ने उसे नोटिस नहीं की कि आज वेंडा पैट्रॉन्स की नहीं है। कहाँ बैठती थी ये वेंडा पैट्रॉन्स की? यूजुअली वेंडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट, सेकंड लास्ट बेंच पर वो बैठती थी, इन द लास्ट रो इन द रूम नंबर 30। रूम नंबर 13 का जो क्लास था वहां पर वो बैठती थी। सी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, रूम का जो कॉर्नर था वहां पर बैठती। वेयर, और वो कौन सी जगह थी? लास्ट दो बेंच, वेयर द रफ बॉयज who did not make good marks sat। क्लास के जो शैतानी बच्चे थे, जिन जिन लोगों के मार्क्स कभी अच्छे नहीं आते थे, द कॉर्नर ऑफ द रूम, रूम का वो कॉर्नर था वेयर देयर वाज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट। स्कफलिंग ऑफ फीट मतलब यहाँ पर लिखा है साइड में बेटा, नॉइजी ड्रैगिंग मूवमेंट्स ऑफ द फीट ऑन द ग्राउंड। कई बार ऐसा होता है क्लास में जब भी टीचर पढ़ाते हैं तो लास्ट बेंचर्स
जो ऐसा नहीं होता ऑलवेज लास्ट बेंचर्स ऐसे होते, ब्रिलियंट भी होते, मगर जनरली ऐसे जो शैतान लोग, शैतानी बच्चे होते हैं, जिन्हें मिस्चीवियस बॉयज आप बोल सकते हो, मिस्चीवियस स्टूडेंट्स, वो टीचर्स पढ़ाते हैं तो अपने पाँव से, शूज से कुछ मूवमेंट करके आवाज करते रहते हैं क्लास में, दैट इज कॉल्ड स्कफलिंग ऑफ फीट। तो ये क्लास भी वही था जहां पर ये रफ बॉयज ऐसी आवाज करते थे, वहां पर वेंडा पैट्रॉन्स की बेइज्जती थी। उसका मतलब वो नहीं कि वेंडा पैट्रॉन्स की भी ऐसी थी, वो कैसी थी देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। मोस्ट रॉर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड। ओके, जब भी टीचर कुछ फनी बात कहते तो वहां से बहुत सारी हंसी की आवाज आती, एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और वहां से ही फ्लोर से सबसे ज्यादा मड और डर्ट, मड मतलब मिट्टी, ओके, गीली मिट्टी, और डर्ट वहीं से मिलता। अभी मैंने बोला कि इन लोगों के साथ वेंडा बैठती थी, तो क्या वेंडा भी ऐसी स्टूडेंट थी? तो राइटर्स हमें बताते हैं वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। वेंडा वहां इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वो रफ थी, नॉइजी थी। ऑन द कॉन्ट्ररी, उससे पूरा उल्टा, शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। वो बहुत ही क्वाइट स्टूडेंट थी, शायद ही कभी कुछ क्लास में बोलती, एंड नो बडी हैड इवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड। और अभी किसी ने भी उसे क्लास में जोर से हंसते हुए नहीं सुना था। होता है ना बेटा, क्लास में कभी टीचर्स कुछ जोक्स ऐसे कुछ कहते हैं तो कुछ लोगों को तो समझ भी नहीं आया कि टीचर्स ने क्या जोक बोला, उन लोगों को तो एक ही बात में इंटरेस्ट होता है, जोर से हंसना, हाँ हाँ ऐसे हंसते रहते हैं, मीनिंगलेस, ओके, एब्सर्ड बोल सकते हो आप उसे। Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile. अगर उसे कभी हंसी आती तो भी वो अपने माउथ को बंद करती रहती, एंड crooked sort of smile, और मुंह बंद करके ही थोड़ा हंस लेती। ऐसी उसकी पर्सनालिटी थी, बट दैट वाज ऑल। बस ऐसी थी वेंडा पैट्रॉन्स की। तो फिर ऐसा क्यों था? अच्छे स्टूडेंट्स के साथ वेंडा पैट्रॉन्स की फ्रंट रोस में क्लास में दूसरी जगह पर क्यों नहीं बैठती थी, वो देखते हैं हम। ये जो मैं सारा समझा रहा हूँ बेटा, अच्छी तरह ध्यान रखना, दैट ऑल यू विल हैव टू राइट इन द क्वेश्चन आंसर। नोबडी न्यू एग्जैक्टली व्हाई वेंडा सैट इन दैट सीट। किसी को एग्जैक्टली नहीं पता था वेंडा वो सीट पर क्यों बैठती थी, अनलेस इट वाज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिन्स हाइट्स। शायद वहां बॉगिन्स हाइट्स से आने वाले सारे, अनलेस इट वाज, शायद इसलिए वो नहीं था, बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिन हाइट्स, क्योंकि वो बॉगिन हाइट्स से आती थी। बॉगिन हाइट्स वो एरिया था, वहां बहुत सारे पॉलिश लोग रहते थे, पुअर स्टूडेंट्स, पुअर लोग रहते थे, और एक ऐसी कम्युनिटी रहती थी वो बहुत बैकवर्ड थी। ओके, वो अमेरिकन्स नहीं थे, वो एरिया था बॉगिन हाइट्स। क्या इसलिए वो बैठती थी क्योंकि वो बॉगिन हाइट्स से आती थी? एंड her feet were usually caked with dry mud. बॉगिन हाइट्स को जो रास्ता जाता था वो बहुत मिट्टी वाला था, पक्का नहीं था, तो ऑब्वियसली उसके जो फीट, उसके जो पांव थे, शूज, उसमें मड और मिट्टी होती। तो शायद वो वहां इसलिए बैठती थी कि उसके पैर में ड्राई मड, सूखी हुई मिट्टी लगी रहती थी। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पैट्रॉन्स की, जो भी था। और वेंडा पैट्रॉन्स की इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं थी, कोई इसके बारे में बहुत नहीं सोचता था। वंस ही सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, एक बार वो वहां रूम में बैठ जाती तो कोई इसके बारे में कुछ नहीं सोचता था। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वेंडा वाज आउटसाइड ऑफ द स्कूल आवर्स। तो फिर जब मेंढा पैट्रॉन्स की क्लास में थी तब वो उनके बारे में नहीं सोचते थे, तो फिर कब उसके बारे में बात करते थे, क्या टाइम था वो? द टाइम इन द थॉट, जब वो वेंडा पेट्रॉन्स्की के बारे में सोचते, द टाइम वॉज अबाउट व्हेन वेंडा वॉज आउटसाइड ऑफ द स्कूल आवर्स। स्कूल में पढ़ने का वक्त होता था, उसके आउटसाइड, उसके अलावा जो टाइम था तब वो होता था, और वो टाइम कब था? एट नून टाइम, दोपहर का टाइम था, जब स्कूल में छुट्टी होती थी, व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, और इन द मॉर्निंग,
और दूसरा टाइम था सुबह में, अर्ली बिफोर स्कूल बिगन। स्कूल 7 o'clock को स्टार्ट होती है, तो सारे बच्चे 6:30 या 6:45 को स्कूल चले जाते हैं। तो वो टाइम तब था जब ये लोग उनके बारे में सोचते थे नहीं, मगर उसके इंसल्ट करते थे। when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the school yard। जब दो, आप जानते हो स्कूल जैसे बच्चे आते हैं, 2 3 या उससे ज्यादा ग्रुप में आते हैं, फ्रेंड सर्कल में आते हैं, तो वो लोग जब भी वेंडा को देख के उसके बारे में बातें करते, उसके बारे में हंसते रहते, जब वो स्कूल के मैदान में आते, यार्ड की ओर आते। Then sometimes they waited for Vanda to have fun with her। और कभी वो लोगों को इतनी मजा आती वेंडा पेट्रॉन्स की फन बनाने के बारे में, कि वो लोग वेंडा के लिए वेट करते कि अभी वेंडा पेट्रॉन्स की आएंगी, लेट्स हैव फन विथ हर, चलो उसकी मजाक बनाते हैं, चलो उसकी इंसल्ट करते हैं। तो वो वेंडा के बारे में वेट करते कि वेंडा आए, बाद में स्कूल चले जाते हैं। द नेक्स्ट डे, ओके बेटा, हमने अभी ये पहले दिन की बात की, मंडे था शायद वो, यस, वेंडा पेट्रोस की स्कूल नहीं आई थी, किसी ने नोटिस नहीं किया, पैगी मैडली ने भी नोटिस नहीं किया, वो लीडर्स थे फन बनाने में। फिर हमने पूरी बैकग्राउंड स्टोरी देखी क्या थी, क्यों वेंडा के बारे में इतना डिस्कस किया गया है। ओके ओके, दूसरा दिन, द नेक्स्ट डे, ट्यूसडे, दूसरा दिन हुआ ट्यूसडे। वेंडा वॉज नॉट इन स्कूल, वेंडा स्कूल नहीं आई आइदर, एंड नो बडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन। दूसरा दिन था, तो भी किसी ने उसकी एब्सेंट नोटिस नहीं की, क्यों वेंडा पेट्रॉन्स की स्कूल नहीं आई। बट ऑन वेनसडे, तीसरा दिन हुआ वेनसडे, तब भी वेंडा पेट्रॉन्स की स्कूल में नहीं आई। पैगी एंड मैडी, मैडी मीन्स मैडलिन, जो हमने बिगिनिंग में नाम देखा, ओके, दैट इज पैट नेम हियर, मैडी। पैगी एंड मैडी who sat down front with other children who got good marks। पैगी एंड मैडी वो फ्रंट रो में बैठते थे दूसरे बच्चों के साथ, उनके मार्क्स अच्छे आए, एंड who didn't track in a whole lot of mud did notice that Venda wasn't there। और वहां जो मड का ट्रैक था लास्ट टू बेंच, वहां उन्होंने नोटिस किया कि वेंडा पेट्रॉन्स की इज नॉट प्रेजेंट। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल। मैंने आप लोगों को इन द बिगिनिंग बोला कि 3 कैरेक्टर्स है स्टोरी में, वेंडा पेट्रॉन्स की इज द चीफ कैरेक्टर, एंड दूसरे कैरेक्टर्स मैंने बोला, देखते हैं यहाँ देखो, ए, पैगी एंड मैडी, ओके, पैगी एंड मैडी, मैडी मीन्स मैडलिन। तो अभी पैगी और मैडलिन कौन लोग हैं उनके बारे में हम देखते हैं। वेंडा पेट्रोन्स्की के बारे में तो थोड़ा कुछ आपको पता चल गया, क्योंकि वो बहुत पुअर गर्ल थी, पॉलिश गर्ल थी। ओके, वेनसडे को भी जब वेंडा पेट्रॉन्स की स्कूल नहीं आई, तो पैगी एंड मैडलिन वो सेट डाउन फ्रंट विथ अदर चिल्ड्रन। पैगी एंड मैडी जो फ्रंट रो में बैठते थे, उनके सारे अच्छे मार्क्स आए, तो फिर उन्होंने नोटिस किया लास्ट बेंच पर वेंडा पेट्रॉन्स की नहीं थी। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, पैगी स्कूल में सबसे ज्यादा पॉपुलर गर्ल थी। क्यों? शी वॉज प्रिटी, ब्यूटीफुल थी। शी हैड मैनी प्रिटी क्लोथिस, दूसरी बात उसके पास बहुत ब्यूटीफुल क्लोथिस थे, ड्रेसेस थे, हर रोज वो प्रिटी ड्रेसेस पहन के आती थी। ओके, शी बिलोंग टू अ रिच फैमिली एंड हर हेयर वॉज ऑयली, और उसके जो हेयर थे वो कर्ली थे। और सो उसकी पॉपुलर होने की वजह, शी बिलोंग टू अ रिच फैमिली, ब्यूटीफुल थी, और हर रोज वो डिफरेंट ड्रेसेस पहन के आती थी इसकी वजह से। और जो मैडी थी उसकी फ्रेंड, वो क्या थी, मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, वो उसकी सबसे क्लोज फ्रेंड थी। द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस वेंडा's एब्सेंस, और क्यों दूसरे लोगों ने नोटिस नहीं की वेंडा की एब्सेंट और ओनली पैगी एंड मैडी ने की, noticed Venda's absent was because Venda had made them late to school। क्योंकि वेंडा की वजह से उन लोगों को स्कूल में आने में देरी हो गई।
ओके, वो लोग स्कूल के लिए लेट हो गए। क्यों? क्यों लेट हो गए? दे हैड वेटेड, उन लोगों ने वेटेड फॉर वेंडा टू हैव सम फन विद हर। चलो अभी वेंडा आएगी, स्कूल जाने के लिए वेट करते हैं, चलो उसकी कुछ उन लोगों के लिए टाइम पास था, वेंडा की इंसल्ट करना, उसकी फन बनाना। वेंडा को आने दो, उसकी कुछ फन करते हैं एंड सी जस्ट हैडंट कम। मगर वेंडा नहीं आई और इन लोगों को देरी हो गई स्कूल में आने के लिए। दे ओफन वेटेड फॉर वेंडा पेट्रोन्स्की, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, कई बार वो वेंडा पेट्रोन्स्की के लिए वेट करते थे टू हैव फन विथ हर, उसके साथ उसकी मजाक बनाने के लिए, उसका फन बनाने के लिए। ओके, ये क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं 1 2 3 4, जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी। ओके, जो मैंने आप लोगों को अभी तक स्टोरी समझाई, उसमें सारे आंसर्स आ गए हैं, आपको अपने आप लिखने हैं होमवर्क में 1 2 3 4। वेंडा पेट्रॉन्स की अभी ये क्लास होता तो मैं डिस्कस करता सारे आंसर्स और आप आंसर्स देते। ओके, इट वुड बी हैव अ गुड टाइम, but it's not classroom, we have some distance, you are learning on distance education, that's why you have to write yourself. Vanda Petronsky, most of the children in room 13 didn't have names like that, और दूसरा भी रीजन था, वेंडा पेट्रोन्स्की का जो नेम था, रूम नंबर 13 में जो बैठती थी उसमें जो बच्चे बैठते थे, एक भी बच्चे का नाम वेंडा पेट्रोन्स्की ऐसा अनफेमिलियर नेम नहीं था। दे हैड नेम्स इजी टू से, उन लोगों के नाम इजीली प्रोनाउंस कर सकते थे। कैसे नेम थे उन लोगों के? थॉमस, स्मिथ, एलन। Of course, they were American, so their names were American. There was one boy named Bounce, और एक बच्चे का नेम था तो Bounce, Willie Bounce, and people thought that was funny. तो उसका नेम कुछ फनी लगता था, Willie Bounce, but not funny in the name way that Petronsky was. मगर वेंडा पेट्रॉन्स्की, उसका नेम लेने में जितना मजा आता था इन बच्चों को, उतना तो नहीं आता था। सो एक नेम की वजह से। दूसरा देखते हैं, वेंडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, वेंडा के बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं थे। सी केम टू स्कूल अलोन, वो अकेली स्कूल आती थी, उसके फ्रेंड्स नहीं थे तो। एंड वेंट होम अलोन, वो अकेली घर पर जाती थी। शी ऑलवेज वॉर अ फैडेड ब्लू ड्रेस, वो बहुत पुअर थी तो वो ऑलवेज एक ही ड्रेस पहनती थी, ब्लू ड्रेस, और वो भी कैसा था? फैडेड। फैडेड किसे बोलते हैं? जिसका कलर चला गया है बहुत टाइम यूज करने की वजह से, जिसका कलर बहुत ही डिम हो गया है, दैट इज कॉल्ड फैडेड। दैट डिडंट हैंग राइट, और वो ब्लू ड्रेस भी कैसा था? दैट डिडंट हैंग राइट। हैंग राइट मतलब डिडंट हैंग राइट, डिडंट फिट प्रॉपरली, वो प्रॉपरली फिटिंग में भी नहीं था उसकी, मगर वो पहन के आती थी। इट वॉज क्लीन, भले ही उसके पास एक ड्रेस था मगर वो एक क्लीन ड्रेस था, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली। वो क्लीन था, वो ऐसा लगता था जैसे उसको एक बार भी आयरन नहीं किया गया, प्रेस नहीं किया गया। She didn't have any friends. वेंडा पेट्रॉन्स्की के कोई फ्रेंड्स नहीं थे, but a lot of girls talked to her. मगर बहुत सारी गर्ल्स उसके साथ बात करती थी। Sometimes they surrounded her in the schoolyard. कई बार वो स्कूल में खड़ी होती। आप देख सकते हो यहाँ पर, ये जो बुक वाली गर्ल है वो वेंडा पेट्रॉन्स की, और ये जो कर्ली हेल वाली ड्रेस है, जीन्स टी शर्ट पहना है, वो है पैगी, और ये उनकी फ्रेंड्स है, उसमें से एक मैडी भी हो सकती है। तो उसके फ्रेंड्स नहीं थे ये जो वेंडा थी उसके, मगर जब भी ग्राउंड में, स्कूल प्ले ग्राउंड में सारे बच्चे होते तो वेंडा के अराउंड वो गेदर हो जाते। ओके, एंड टॉक टू हर, उनसे साथ बातें करते। They surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. जब वो खड़ी होती ग्राउंड में और देखती छोटी छोटी बच्चियां हॉपस्कॉच खेलती थी ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड,
Okay, hopscotch is the name of game. यहाँ पर लिखा है a game in which children hop into and over squares marked on the ground. आप भी वो खेलते हो शायद. ओके, छोटे बच्चे खेलते हैं, छोटे छोटे स्क्वायर 9 या 10 स्क्वायर्स बनाते हैं और उसमें जंप करने की वो गेम होती है हॉपस्कॉच. ओके, तो छोटे बच्चे जब खेलते और वेंडा पैटर्न्सकी के कोई फ्रेंड नहीं थे तो अकेली वो खड़ा वहां पर खड़ी होती और वो देखती रहती बच्चे को. तो वो सारे लोग, ओके, वो उन लोगों के लिए मैं अभी कोई एडजेक्टिव यूज नहीं करता. आप अच्छा एडजेक्टिव यूज कर लेना उन लोगों के लिए. ओके, क्या बोल सकते हैं ऐसे लोगों को. कभी किसी बच्चे की इंसल्ट थोड़ी करनी चाहिए पॉवर्टी की वजह से, किसी कास्ट की वजह से या पर्टिकुलर रीजन को वो बिलोंग करता है. दैट इज वेरी मच रॉन्ग. कैसे वो इंसल्ट करते हैं देखो. वेंडा, पैगी वुड से इन अ मोस्ट कर्टियस मैनर. पैगी मोस्ट कर्टियस, कर्टियस मतलब डिसिप्लिनेड मैनर के साथ पैगी बोलती है. वेंडा एज दो शी आर टॉकिंग टू मिस मैसन, जैसे कि वो मिस उनकी टीचर है शायद. ओके, मिस मैसन के साथ बात करती है इस तरह से बोलती है. वेंडा शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड अ नज. ये जो नज लिखा है उसका मीनिंग साइड में लिखा है अ जेंटल पुश. उसके एक फ्रेंड्स को वो जेंटल पुश धीरे से धक्का देते हुए बोलती और वेंडा को बोलती कि वेंडा टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट. क्लोजेट मतलब कपबोर्ड. कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये उन लोगों का टाइटल था उसकी फन बनाने के लिए कि वेंडा बोलो तो, एक दिन तुमने बोला था तुम्हारे कपबोर्ड में कितने ड्रेसेस है. बोलो बोलो कितने ड्रेसेस है वेंडा तुम्हारे कपबोर्ड में, तुम्हारे क्लोजेट में कितने ड्रेसेस है. और वेंडा आंसर देती 100 ड्रेसेस है मेरे पास, 100. और सारी बच्चियों, सारे जो लड़कियां थी गर्ल्स, उन लोगों को मजा आता कि हर रोज ये फैडेड ब्लू ड्रेस पहन के आती है और ये बोलती है 100. तो वो क्या बोलते हैं 100 exclaimed all the little girls incredulously. incredulously मतलब showing unwillingness to believe. और सारे जो गर्ल्स थी वो एक्सक्लेम करती, सरप्राइज होती और बोलती कि हमें तो ये बात हम मान नहीं सकते, तुम्हारे पास 100 ड्रेसेस है. एंड द लिटल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉपस्कॉच. और जो छोटी बच्चियां जो हॉपस्कॉच खेलती रहती थी वो लोग भी यहाँ पर दौड़ के आते और सुनते, ध्यान से सुनते. या 100 ऑल लाइंड अप सेड वेंडा. वेंडा बोलती या आई हैव 100 ड्रेसेस एंड ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट इन माई कपबोर्ड. और लाइंड अप मीन्स बहुत अच्छी तरीके से उन्हें अरेंज करके रखा है मैंने मेरी क्लोजेट में. Then her thin lips drew together in silence. फिर वो कुछ नहीं बोलती, उसके छोटे से लिप्स बंद हो जाते, साइलेंस होती. और फिर उन लोगों की बारी आती. पैगी जो लीडर थी, उसकी फ्रेंड मैडी और दूसरी गर्ल्स. What are they like? All silk, I bet, said Peggy. बैट मतलब शर्त लगाना. मैं शर्त लगाती हूँ पैडी. शायद पैगी बोलती कि मैं शर्त लगाती हूँ सारे सिल्क ड्रेसेस हो गए. या ऑल सिल्क ऑल कलर्स. तो ये जो वेंडा बोलती, ये सब आपको लास्ट में पता चलेगा क्या कहना चाहती है. कि शायद सही में उसके पास 100 ड्रेसेस थे उसके पास. ओके, मगर क्या वो कहना चाहती है वो आपको लास्ट में पता चलेगा. या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, हाँ सारे सिल्क के ड्रेस है मेरे पास, ऑल कलर्स. वेलवेट टू, क्या आपके पास वेलवेट के भी ड्रेस है. या वेलवेट टू, मेरे पास वेलवेट के भी ड्रेस है. 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेसेस है. वेंडा वुड रिपीट स्टॉलिडली. स्टॉलिडली मतलब नॉट शोइंग एनी फीलिंग. वो जानती थी ये लोग मुझे इंसल्ट कर रहे हैं, किस कोई भी फीलिंग नहीं दिखाती और बोलते या वेलवेट के भी है, ऑल लाइंड अप इन माय क्लोसेट. और सारे ड्रेसेस मेरी जो क्लोसेट है उसमें लाइंड अप है. Okay, students, let us stop here. This lesson here. We shall learn the lesson in the next part. Thank you very much.